આત્મી યુનિવર્સિટીના માનની શ્રી ડીડી વ્યાસ સાહેબ, રજિસ્ટ્રાર શ્રી, માનની શ્રી અશોકભાઈ રાવલ, માનની શ્રી ભૂપતભાઈ ગોવાણી સાહેબ, માનની શ્રી શાંતુભાઈ રૂપારેલિયા, માનની શ્રી ભરતભાઈ મોદી, માનની શ્રી રાજાભાઈ કાથડ સાહેબ. यं वेदिका मन्त्रदृशः पुराणा इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहु वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकं यं ब्रह्मशब्देन विनिर्दिशन्ति सेवायमीशं शिवैत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुधस्तदान्निति बौद्धजैना शतश्रीयकालेति च शिक्षन्त शास्त्रेति केचित् प्रकृतिकुमार स्वामीति मातेति पितेति भक्ता यं प्रार्थयन्ते जगदीशतारं सः एक एव प्रभुरद्वितीय. श्री राम जय जय राम. 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 મહાનુભાવોને વિનંતી કરીશ કે દીપ પ્રાગટ્ય માટે બધા પધારે. जय माता की जय.
મંચસ્થ મહાનુભાવોનો પરિચય આપું છું. માનની શ્રી વિનાયકરાવજી દેશપાંડે, તેઓ માનની શ્રી ડૉક્ટર ડીડી સાહેબ આત્મી યુનિવર્સિટીના રજિસ્ટ્રાર શ્રી છે. માનની શ્રી અશોકભાઈ રાવલ ગુજરાત ક્ષેત્રીય મંત્રીની જવાબદારી નિભાવે છે. માનની શ્રી ભૂપતભાઈ ગોવાણી સૌરાષ્ટ્ર પ્રાંત મંત્રીશ્રીની જવાબદારી છે. અને રાજકોટ મહાનગરના અધ્યક્ષ શ્રી શાંતુભાઈ રૂપારેલિયા. કાર્યક્રમના અધ્યક્ષ શ્રી રાજાભાઈ કાથડ સાહેબ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી સંસ્કૃત વિભાગના પ્રોફેસર શ્રીની જવાબદારી નિભાવે છે. હવે શાંતુભાઈને શાબ્દિક પ્રવચન માટે આમંત્રણ આપો. અચ્છા એની સામાજિક વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ દ્વારા સામાજિક સમરસતા સંગમ એવા નામથી એક આપણે કાર્યક્રમ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ત્યારે આ કાર્યક્રમના અધ્યક્ષ શ્રી રાજાભાઈ, શ્રી વિનાયકજી અને આપણા અન્ય હોદ્દેદારશ્રીઓ, પધારેલા નિમંત્રિત ભાઈઓ તથા બહેનો, સમાજમાં જઈને કરવાના છે અને કરી રહ્યા છે. કેટલીક યોજનાઓ થતી હોય છે. કેન્દ્રના અધિકારીઓનો જ્યારે પ્રવાસ થતો હોય છે ત્યારે કેટલીક યોજનાઓ થતી હોય છે. આને ધ્યાનમાં રાખી અને આજનો રાજકોટ મહાનગરમાં સામાજિક અગ્રણીઓ સાથે આપણા વિનાયકજી વાતચીત કરે એવો વિચાર કર્યો. આજના સાંપ્રત સમયમાં જ્યારે સમાજ જ્ઞાતિ, જાતિ અને ધર્મના વાડામાં જ્યારે વિભિન્ન થઈ રહ્યો છે, વિચ્છેદ એનો થઈ રહ્યો છે, ત્યારે એવા સમયે સમાજમાં આપણી શું ભૂમિકા હોઈ શકે, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદની શું ભૂમિકા હોઈ શકે અને સમાજના જ્ઞાતિ અગ્રણી તરીકે આપણી શું ભૂમિકા હોય, એની એક વાતચીત. આજે સમાજ જ્યારે દિશાવિહીન, ગેરમાર્ગે દોરવાઈ જવું, વિવિધ જ્યારે એમની સામે પ્રલોભનો હોય છે ત્યારે એ પ્રલોભનમાં આવી જવું, આ બધા સમાજની અંદર રહેલા જે દુર્ગુણો છે એને આપણે નિયંત્રિત કેવી રીતે કરી શકીએ, આ બધી દિશાઓને લઈ આપણા સમાજના આપણે આગેવાન છીએ તો આગેવાન તરીકે આપણી ભૂમિકા કઈ હોઈ શકે, શું હોઈ શકે, એ વાતચીત પણ અત્યારે કરવાના છે. અને આપણે આગળનો કાર્યક્રમ શાંતિપૂર્ણ સાંભળીએ એવું. જય શ્રી રામ. જય શ્રી રામ. આજના કાર્યક્રમમાં આવેલ મહાનુભાવોના સ્વાગતમાં સૌપ્રથમ હું રાજકોટ મહાનગરના કાર્યકારી અધ્યક્ષ હસુભાઈ ચંદારાને વિનંતી કરીશ કે શ્રી વિનાયકરાવ દેશજી પાંડેનું સારું રોડી અને સ્વાગત કરશે. રાજકોટ. જય જય શ્રી રામ. આજના સામાજિક સમરસતાના કાર્યક્રમમાં વિવિધ સમાજના ક્ષેત્રીય મંત્રી શ્રી અશોકભાઈ રાવલ ઉપસ્થિત છે. તેમનું હું કરીશ કે અશોકભાઈ રાવલનું સારું ઉડાડી સન્માન કરશે. પ્રદીપસિંહ જાડેજાને કે આવી અને સૌરાષ્ટ્ર પ્રાંતના મંત્રી શ્રી ભૂપતભાઈ ગોવાણીનું સન્માન કરશે. પશ્ચિમ જિલ્લાના અધ્યક્ષ આલમભાઈ બારાની વિનંતી કરીશ કે રાજકોટ મહાનગરના અધ્યક્ષ શાંતુભાઈ રૂપરેલનું સારું ઉડાડી સ્વાગત કરશે. રજીસ્ટર રહી ગયા છે ને? હા, રજીસ્ટર.
આપણા જેના સાનિધ્યમાં આજનો કાર્યક્રમ છે તેવા આત્મીય યુનિવર્સિટીના ડૉક્ટર ડીડી વ્યાસ સાહેબને સન્માન કરવા હું માન્ય શ્રી ચીમનભાઈ સિંધોને વિનંતી કરીશ. શ્રી વ્યાસ સાહેબનું સન્માન કરશે. જય જય શ્રી રામ. નિભાવી રહ્યા છે તેઓ પણ ઉપસ્થિત છે. તેમનું પણ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ રાજકોટ મહાનગર હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. ખાસ કરીને આમંત્રણને માન આપીને શ્રી રસેશભાઈ રાવલ કે જેઓ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના ક્ષેત્રના સામાજિક સમરસતાના પ્રમુખની જવાબદારી નિભાવી રહ્યા છે. માન્ય શ્રી ધીરુભાઈ કપૂરિયા નથી, માન્ય શ્રી પ્રદીપભાઈ વ્યાસ સાથે માન્ય શ્રી દેવજીભાઈ રાવત વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ સૌરાષ્ટ્ર પ્રાંતના સહમંત્રીની એમની જવાબદારી છે. વિશેષ પરિચય બાદ આજના કાર્યક્રમને આગળ ધપાવતા જે સાનિધ્યમાં આજે આપણે આ કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે, જેમના સાથ અને સહયોગથી એવા આત્મીય યુનિવર્સિટીના શ્રી રજિસ્ટ્રાર શ્રી ડૉક્ટર ડીડી વ્યાસ સાહેબને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ શબ્દોથી સ્વાગત કરશે. શ્રી વ્યાસ સાહેબ. નમસ્કાર. પરમ પૂજ્ય બ્રહ્મ સ્વરૂપ હરિપ્રસાદ સ્વામીજી મહારાજ, પ્રગટ ગુરુ હરિ પરમ પૂજ્ય પ્રેમ સ્વરૂપ સ્વામીજી મહારાજ, આ કેમ્પસના મેન્ટર અને આત્મીય યુનિવર્સિટીના પ્રેસિડેન્ટ પરમ પૂજ્ય ત્યાગવલ્લભ સ્વામીજી મહારાજના ચરણોમાં વંદન સાથે આજના આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત અધ્યક્ષ શ્રી રાજાભાઈ કાછડજી, વિશેષ મહેમાન વિનાયકરાવ દેશપાંડેજી, શાંતુભાઈ, નરેન્દ્રભાઈ, મુરબ્બીશ્રી ભૂપતભાઈ, અશોકભાઈ, ભરતભાઈ, બીજા આવેલા મહેમાનો, આ બધાનું આત્મીય યુનિવર્સિટી અને યોગીધામ ગુરુકુળ વતી ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. અમારા માટે એક અવસર છે, આપ બધા અહીંયા પધાર્યા, આ પ્રોગ્રામનું આયોજન આપે આ કેમ્પસમાં કર્યું. અમે અમારી જાતને ફોર્ચ્યુનેટ માનીએ છીએ. આત્મીય યુનિવર્સિટીના પ્રેસિડેન્ટ પરમ પૂજ્ય ત્યાગવલ્લભ સ્વામીજી પોતાના અમુક સેવા કાર્યોના કારણે આ પ્રોગ્રામમાં હાજર નથી રહી શક્યા, પણ સ્વામીજીએ આપણા સૌ માટે એક સંદેશ પાઠવ્યો છે, જે હું આપની સામે વાંચી સંભળાવીશ. આઈ કોટ: આત્મીય સ્વજન શ્રી શાંતુભાઈ અને સહકાર્યકર્તાઓ, નમસ્કાર, જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈને કહેલું, માનવજાત પરસ્પર કૃતત્વથી જોડાયેલ છે. આ વાત સમજાય ત્યારે સમરસતા, સમાનતા અને સમન્વયની લાગણી જન્મે. આ લાગણી સમાજમાં વધુને વધુ પ્રસરે અને પ્રતિષ્ઠિત થાય તે માટે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ વધુ એક વખત પહેલ કરી છે. તે હિન્દુ સમાજનું સુકન છે. પરસ્પરની લાગણીઓ સ્વીકાર થાય ત્યારે જ એક મંચ પર આ શક્ય બને, અને આ આત્મીયતાની શરૂઆત છે. મુરબ્બી વડીલ શ્રી વિનાયકરાવજી વિદ્વતાપૂર્ણ વ્યક્તિત્વના આ કાર્યક્રમ દ્વારા વિવિધ જાતિગત સમસ્યાઓથી વ્યાપેલા અંધકારને સ્થાને સમરસતાનો અજવાસ પ્રસરે એ આ કાર્યક્રમનું હેતુ છે. આનાથી જનજાગરણનું કાર્ય થશે. આ બાબતો આત્મીયતાની જીવન ભાવનાને વધુ દ્રઢ બનાવશે. ગુરુહરિ બ્રહ્મ સ્વરૂપ હરિપ્રસાદ સ્વામીજી મહારાજના મતે આત્મીયતા તો સર્વે સમસ્યાઓનું સમાધાન છે. દરેક કાર્યને અસરકારક અને સફળ બનાવવામાં એ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે.
વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના માધ્યમથી હાથ ધરાનારા દરેક બાબતો સમાજ માટે નૂતન દિશાનો નિર્દેશ કરનારી બની રહે છે. આ કાર્યક્રમ પણ સંગઠન શક્તિના સકારાત્મક પાસાઓ અભિવ્યક્ત કરનારો બની રહે તેવી શ્રદ્ધા છે. આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેવા માટે ખૂબ જ ઈચ્છા હતી, પરંતુ અનિવાર્ય સેવા કાર્યોને કારણે હાલ હરિધામ સોખડા આવવાનું થયું છે. પ્રગટ ગુરુહરિ પરમ પૂજ્ય પ્રેમ સ્વરૂપ સ્વામીજી મહારાજ હાલ વિદેશની ધર્મયાત્રાએ છે. તેઓશ્રીએ પણ આ કાર્યક્રમના ઉદ્દેશ્ય અંગે પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરી આશીષ પાઠવ્યા છે. વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ આ આયોજનમાં સહયોગી થનાર સૌ સ્વજનોને સ્નેહ સ્મરણ. આત્મીય પરિવાર વતી કાર્યક્રમને શુભકામના. આત્મીયતાપૂર્વક સાધુ ત્યાગવલ્લભ દાસના જય સ્વામિનારાયણ. આઈ અનકોટ. સો ઓન બિહાફ ઓફ ધ યુનિવર્સિટી તરફથી, પરમ પૂજ્ય ત્યાગવલ્લભ સ્વામી તરફથી અને સંપૂર્ણ આત્મીય પરિવાર તરફથી આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. જય શ્રી રામ. જેમના આંગણે કાર્યક્રમ હોય અને આપણી પરંપરા મુજબ જો તે મહેમાનોનું સ્વાગત ન કરે તો કેમ ચાલે? તો હું વિનંતી કરીશ શ્રી જિજ્ઞેશભાઈ રાઠોડ અને રજિસ્ટ્રાર શ્રી વ્યાસ સાહેબને કે આપણા જે અતિથિ છે વિનાયકરાવજી દેશપાંડે તેમનું યુનિવર્સિટી મારફત સન્માન કરશે. બોલો જય જય શ્રી રામ. સાથે સાથે યુનિવર્સિટી તરફથી જે સ્વામીજીનો સંદેશો વાંચ્યો તે સંદેશો પણ જે આપણા મુખ્ય વક્તા છે તેમના વિનાયકરાવજીને યુનિવર્સિટી મારફત સુપ્રત. જય જય શ્રી રામ. અનુભાવોને સંબોધિત કરશે શ્રી વિનાયકરાવજી. आज के अपने कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर राजा साहब, इस आत्मीय यूनिवर्सिटी के आत्मीय रजिस्ट्रार जिन्होंने बहुत आत्मीयता से हम सभी का स्वागत किया, फिर विश्व हिंदू परिषद के अपने प्रांत के अध्यक्ष, क्षेत्र के मंत्री, महानगर के अध्यक्ष, प्रांत के सारे पदाधिकारी और आप सभी हिंदुत्वनिष्ठ धर्म प्रेमी देशभक्त भाइयों और बहनों, इस सामाजिक समरसता संगम में आप सभी लोग यहाँ आए, मैं पहले आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ. हम भारत माता के सपूत हैं, हिंदू हैं, राम के भक्त हैं और स्वामीनारायण भगवान से प्रेरणा लेकर जो यहाँ काम चल रहा है, तो उसे एक शिक्षा के इस पावन मंदिर में हम सब लोग एकत्रित आए हैं. तो पहले ज़रा उसकी जयकार हम करते हैं. बोलो भारत माता की, हिंदू धर्म की, स्वामीनारायण भगवान की जय श्री राम. जैसे प्रस्तावना में भूपत भाई ने कहा, आज अपने देश के सामने जो अनेक समस्याएं हैं उसमें सामाजिक दृष्टि से सबसे बड़ी समस्या जो है वो है छुआछूत की बीमारी. ये फलाने जाति का है इसलिए बड़ा, ये फलाने जाति का है इसलिए छोटा, ये मंदिर में नहीं जा सकता, ये इसके घर पे नहीं जा सकता, वो इनके घर पे जाकर पानी नहीं पी सकते. अपने हिंदू समाज का सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी एक अपनी कमी के कारण हुआ होगा या कुप्रथा के कारण हुआ होगा, तो वो कुप्रथा है छुआछूत की, अस्पृश्यता की, सामाजिक भेदाभेद की. वैसे अगर देखा जाए तो हमारे सारे पूजनीय संतों ने सामाजिक समरसता के लिए प्रयत्न किया. जैसे हम सभी को मालूम है कि पूजनीय स्वामीनारायण भगवान उस समय जब सत्संग के लिए जाते थे, तो चाहे पिछड़ा समाज का हो या अनुसूचित जाति का हो, उनके सभी के घरों में जाते थे, सत्संग करते थे, उस बस्ती में करते थे. अपने ही सौराष्ट्र में
पूजनीय नरसिंह मेहता जी हो गए, वो तो हरिजन बस्ती में जाकर सत्संग करते थे, उसके कारण कुछ लोगों ने उन पर सामाजिक बहिष्कार भी किया, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और बहिष्कार करने वाले बाद में उनके शिष्य बने। भारत में जितने गत 1000 साल में संत हो गए, उन सभी ने इस सामाजिक भेदाभेद के विरोध में आवाज उठाया और समरसता का, समता का भी उपदेश किया। आधुनिक काल में चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, विश्व हिंदू परिषद हो, स्वामीनारायण संप्रदाय हो, गायत्री परिवार है, आर्य समाज है, ये सभी समरसता के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन अत्यंत दुखित अंतःकरण से कहना पड़ता है आज भी ये समस्या अपने देश में बड़े पैमाने पर है। कदाचित मुंबई, राजकोट, कर्णावती, दिल्ली ऐसे बड़े महानगरों में कम दिखती होगी, लेकिन ऐसे महानगर छोड़कर अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, तालुका के स्थानों पर जाएंगे, कस्बों में जाएंगे, तो ध्यान में आता है कि भेदाभेद की समस्या बहुत बड़े पैमाने पर आज भी विद्यमान है। वैसा अगर देखा जाए तो अपना हिंदू धर्म का तत्वज्ञान बहुत महान है। अपनी तत्वज्ञान की विशेषता बताते समय एक वाक्य का उपयोग हमेशा किया जाता है, वो है सर्वम खल्विदम ब्रह्म। सभी में परमेश्वर है। तो सभी में परमेश्वर माने सभी मनुष्यों में है, सभी प्राणियों में है, पंछियों में है, पेड़ों में, पौधों में, चराचर सृष्टि में परमेश्वर है, सजीव निर्जीव सभी में। इस पोडियम में भी है, इस माइक में भी है, इस दीवार में भी है और इस कुर्सी में भी है। तो अगर सभी में भगवान है, सभी में परमेश्वर है, तो सारे समान हो गए। परंतु हमारा वैसा व्यवहार नहीं है। अगर सभी में परमेश्वर है तो क्या ब्राह्मण में और वैश्यों में ज्यादा भगवान है? पटेलों में, जाटों में, यादवों में उससे कम है? और जो हमारे रोहित बंधु है, वणकर बंधु है, वाल्मीकि बंधु है, उनमें उससे कम है? अगर सभी में परमेश्वर तो सारे समान होने ही चाहिए। परंतु भाइयों बहनों, हमारा तत्वज्ञान अत्यंत श्रेष्ठ है। सभी में परमेश्वर है कहने वाला दुनिया में कोई भी धर्म नहीं है। व्यक्ति में परमेश्वर है, हर चीज में परमेश्वर है कहने वाला केवल और केवल हिंदू धर्म है। इतना उच्च तत्वज्ञान हमारा है। हमारा तत्वज्ञान अत्यंत श्रेष्ठ है, माफ करना, लेकिन हमारा आचरण अत्यंत कनिष्ठ है। जब कथनी और करनी में फर्क होता है ना, तो उसको पाखंड कहते हैं, ढोंग कहते हैं, जो आज भी अपने समाज में बड़े पैमाने पर है। अभी मैं दिल्ली में जरा एक सज्जन को मिलने के लिए गए थे। किस कार्यक्रम में उनको प्रमुख अतिथि बुलाना था, इसलिए दिल्ली के अध्यक्ष के साथ हम गए थे। जैसे हम उनके, और भी 2-3 लोग थे, जैसे हम उनके घर में गए तो उनका जो कुत्ता था वो अल्सेशियन कुत्ता था, तो वो एकदम भौ भौ करके आया। तो हमारे साथ एक कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा अरे, मैंने कहा चिंता मत करिए, मालिक अपने साथ है, वो कुछ नहीं होगा। तो हम बैठ गए उनके डाइनिंग रूम, दीवान खाने में। बैठने के बाद वो कुत्ता बार बार आ गया हमारे पास। वो उन्होंने कहा चिंता मत करिए, कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो आने लगा और हमारे पैर चाटने लगा। तो वो सब लोग अस्वस्थ हो गए सब। अभी सोफे में तो कोई पैर पलथी मारकर बैठ नहीं सकता। तो उन्होंने कहा चिंता मत करिए, मैं इसको मेरे बेडरूम में लेके जाता हूँ। तो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा बेडरूम में क्यों भाई साहब? उन्होंने कहा ऐसा है, ये मेरे बेडरूम में जाने के बाद मेरे बेड पर जब 1 मिनट के लिए बैठता है ना, तब एकदम ये शांत होता है बकरी जैसा। फिर यहाँ आएगा और अपने इस दीवान खाने में कोने में बैठेगा, फिर आप 1 घंटा भी बैठिए, कुछ भी नहीं करेगा। और ऐसा ही हुआ। वो बेडरूम में लेकर गए, 1 मिनट भर बैठे हो गए, 2 मिनट में बाहर आ गए। तो इतना ज़बरदस्त बड़ा शेर जैसा होता है एसोसिएशन कुत्ता, तो वो बाजू में जाकर बैठा। हमारी जो बातचीत थी वो आधे घंटे की वो हो गई, चाय पानी हो गया, हम निकले। मेरे मन में आया कि कुत्ते हमारे घर में रखते हैं, आप में से भी कुछ लोगों के कुत्ते घर पे हो गए। शहरी क्षेत्र के बड़े लोग डॉबरमन, एसोसिएशन, जर्मन शेफर्ड, इस पति के कुत्ते रखते हैं। हमारा गांव का खेडूत भी अपना देशी कुत्ता अपने पास रखता है। गुवाहाटी में एक
चाय बागान के मालिक के पास गया था, तो उनके श्रीमती जी ने कहा कि विनायक जी, एक 2 बिल्लियाँ हमारे पास आई है, वो थाईलैंड से आई है। मैंने कहा अच्छा। और उन्होंने कहा उनको हर एक को जो खुराक देते हैं हम, तो हर एक का जो खुराक है वो 500 रुपये का है, वो बाजार से लाना पड़ता है, बाकी अपना घर का कुछ नहीं खाती। और वो बिल्ली सब जगह घूमती है। आप में से भी कुछ घरों में बिल्ली होगी, ग्रामीण क्षेत्र में तो बिल्ली होती है चूहा खाने के लिए। तो मन में प्रश्न आता है कि बिल्ली को हमारे घर में प्रवेश है, कुत्ते को हमारे घर प्रवेश है। कुत्ता हमारे बेडरूम में जा सकता है, बिल्ली तो हमारे रसोई घर में जा सकती है। परंतु आपको और मुझे भगवान ने जैसा 3.5 हाथ का देह दिया है, मेरे जैसे हाथ, मेरे जैसे आंखें और मेरे जैसे पैर जिसको दिए हैं, वो एक विशिष्ट जाति में उसका जन्म हुआ है, इसलिए उसको हमारे घर में प्रवेश नहीं है। तो जानवरों से भी बदतर व्यवहार हम मनुष्य के साथ करते हैं। जो मनुष्य के साथ मनुष्य जैसा व्यवहार नहीं करता वो मनुष्य नहीं, उसको ही राक्षस कहते हैं। आप कहेंगे भाई साहब हम नहीं ऐसे, अरे आप नहीं है, बाकी तो हिंदू समाज को तय करना है हमें राक्षस बनना है या हमें मनुष्य बनना है। तो सारे हिंदू समाज को मनुष्य बनाने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना है। विश्व हिंदू परिषद उसके लिए जन जागरण करती है और हर व्यक्ति का, समाज का गांव-गांव में जाकर प्रबोधन करती है कि हम सब एक हैं। जब विश्व हिंदू परिषद का सम्मेलन होता उडुपी में, तब सभी संतों ने मिलकर उद्घोष किया, हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्। सारे हिंदू एक ही मां के पुत्र पुत्रियां हैं, कोई भी हिंदू पतित नहीं। मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता, समानता लाना ये मैंने मंत्र लिया है, उसके लिए मैं काम करूंगा। और इस पद्धति का भाव सारे समाज में हो, संतों में हो, संत अनुसूचित जाति के बस्तियों में जाएं, जनजाति के बस्तियों में जाएं, वहां कार्यक्रम हो जाए। इस नाते से विश्व हिंदू परिषद का प्रयत्न ये चलता है, लेकिन तो भी मैं कहता हूं, तो भी एक बहुत बड़े पैमाने पर ये समस्या आज भी अपने देश में है। वास्तविक देखा जाए, मैंने बीमारी का शब्द प्रयोग किया। अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी आ गई तो वो क्या करता है, हम कोई भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं। मान लो हमें मलेरिया हो गया किसी घर में किसी को, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्विनाइन की टैबलेट देता है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि मलेरिया क्यों हो गया? अरे बारिश के दिनों में आपके घर के आसपास पानी ऐसा जमा रहता है क्या? वहीं तो सारे मच्छर आते हैं। तो आपके घर की और घर के अड़ोस पड़ोस के परिसर की सारी स्वच्छता करो। अगर कहीं पानी जमा हुआ होगा तो वहाँ घासलेट डालो, तो आपको मलेरिया भविष्य में किसी को नहीं होगा। तो क्विनाइन की टैबलेट लेना ये अपना एक इमरजेंसी का। बीमारी कब समाप्त होती है, बीमारी क्यों आई, इसके संदर्भ में पूछताछ करके वो जो आई उसका कारण ही अगर हम निरस्त करेंगे तो बीमारी आएगी ही नहीं। तो ये जो अस्पृश्यता की, छुआछूत की बीमारी कैसे आई, पहले थी क्या? नहीं थी। उसके संदर्भ में अगर विचार करते हैं, वेद काल में अगर हम चर्चा करते हैं तो वहां तो अस्पृश्यता की बीमारी थी नहीं। वहां 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और भगवान कृष्ण ने कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म के आधार पर मैंने चातुर्वर्ण निर्माण किए हैं। अत्यंत लचीली व्यवस्था थी। ब्राह्मण का बेटा अगर कुछ नहीं करता है तो वो शूद्र बन सकता था, शूद्र का बेटा होशियार है तो वो भी ब्राह्मण या क्षत्रिय बनता था। तो ऐसा कोई भी इस वर्ण से उस वर्ण में जा सकता था। जैसे हम सभी को मालूम है, विश्वामित्र जी, विश्वामित्र जन्मतः क्षत्रिय थे, राजा थे। उन्होंने साधना की, तप किया, वो ब्रह्मर्षि बन गए। भगवान वेदव्यास, तो वेदव्यास जी के पिताजी भले पाराशर ऋषि थे, लेकिन वेदव्यास की माँ कौन थी? तो एक केवट की कन्या थी, सत्यवती। आज के ज़माने में अगर वेदव्यास का जन्म होता तो हम उनको पिछड़ा कहते हैं, लेकिन वेदव्यास ने सारे वेदों का संपादन किया, उन्होंने महाभारत लिखा, हमने कितना उनको सम्मान दिया। चलो ये तो बात छोड़ो, ऋग्वेद पर जिन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ लिखा है, आयत्रेय, वो लिखा है कि इन्होंने तो महर्षि मैदास जी ने।
महिदा जी दासी पुत्र थे, उनकी माँ का नाम था इत्रा, तो अपनी माँ के नाम से उन्होंने ग्रंथ लिखा, इसलिए उसका नाम हो गया ऐतरेय। लेकिन मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं, वेदों में जिनकी ऋचाएं हैं उसमें एक ऋषि है, उनका नाम है सत्यकाम जाबाल। सत्यकाम जाबाल जब छोटे थे तब उनकी माँ उनको एक गुरु के पास लेके गई। माँ अंदर नहीं आई, माँ ने उसको अकेले को भेजा, आप जाइए आश्रम में। वो गुरु के सामने खड़ा हो गया। गुरु ने पूछा आपका नाम क्या? उसने कहा मेरा नाम जाबाल। अच्छा, तो तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? उसने कहा मुझे मालूम नहीं। अच्छा, तो तुम्हारा गोत्र कौन सा है? उनका वो भी मुझे मालूम नहीं। तो किसके साथ आया? मेरी माँ के साथ आया। माँ को पूछो। वो माँ के पास गया कि गुरु ये पूछ रहे हैं। जाबाला ने उत्तर दिया, उसकी माँ का नाम जाबाला, कि अपने गुरु को कहो कि मेरी माँ ने इतने पुरुषों के साथ सेवा की है और इतने पुरुषों के साथ उसका संबंध आया है, कौन मेरा पिता है और कौन कौन सा मेरा गोत्र है वो नहीं बता सकती। वो गणिका थी। तो जाबाल ने यही बात अपने गुरुदेव को कहा। गुरुदेव ने कहा तुम्हारी माँ भी धन्य है और तू भी धन्य है, आप दोनों झूठ नहीं बोले, आज से तुम्हारा नाम सत्यकाम जाबाल। तो एक गणिका का बेटा शिष्य बना, 12 साल साधना की और इतना बड़ा ऋषि बन गया कि उनकी ऋचाएं वेदों में है। इस पद्धति की लचीली व्यवस्था उस समय भारत में थी, तो ये इस पद्धति की कुप्रथा कैसे आई होगी? देखो अभी इस साल, अगले साल 2025 में जनवरी फरवरी मास में प्रयाग में कुंभ है, महाकुंभ है। अपने देश में 4 जगह कुंभ होता है, प्रयाग, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, हम सभी को पता है। हजारों साल से कुंभ में जाकर स्नान की परंपरा अपने देश में है। लेकिन हिंदुस्तान के इस सारे कुंभ में कहीं भी जाति के आधार पर स्नान की व्यवस्था नहीं है। भाई सवेरे केवल सवर्ण स्नान करेंगे, दोपहर को केवल पिछड़े स्नान करेंगे और शाम को अंधेरा पड़ने के बाद अनुसूचित जाति के लोग स्नान करेंगे। इस घाट पर केवल यही स्नान करेंगे, इस घाट पर केवल यही स्नान करेंगे। हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं। क्यों नहीं? कुंभ की परंपरा जब हजारों साल पहले शुरू हो गई तब इस पद्धति की स्थिति थी ही नहीं, उसके कारण स्थिति आई। अगर उस समय जातीयता होती, भेद होते, तो वो स्थिति आ जाती, तो वो नहीं थी। तो ये कब आ गई? इसके संदर्भ में पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुत कुछ बातें लिखी है। तो मैं उनकी कुछ 4-5 बातें केवल आधा मिनट में बताता हूँ। अम्बेडकर जी का सारा जो साहित्य है वो केंद्र सरकार ने उसके अनेक खंड प्रसिद्ध किए। उसमें जो 14 खंड है, अस्पृश्यता कौन, कैसे और अस्पृश्यता निर्माण कैसे हुई, ये उसका हेडिंग है। अम्बेडकर जी ने अपनी पुस्तक में पहली बात लिखी है, वेद काल में हिंदुस्तान में अस्पृश्यता नहीं थी। अम्बेडकर जी ने कहा 4वीं शती तक हिंदुस्तान में अस्पृश्यता नहीं थी। वो कहते हैं कि उस समय डोम और चांडाल थे। डोम और चांडाल को लोग अपवित्र कहते थे लेकिन अछूत नहीं मानते थे। अम्बेडकर जी का वाक्य है, अस्पृश्यता अलग बात है, अपवित्रता अलग बात है। उन्होंने संदर्भ दिया है, रेफरेंस दिया है फाइयन का, चीनी प्रवासी जो 5वीं शती में भारत में आया। उन्होंने कहा फाइयन के प्रवास स्मरण में ऐसे अनेक उल्लेख मिलते हैं कि डोम और चांडाल ब्राह्मण क्षत्रिय के घर में जा रहे हैं और ब्राह्मण क्षत्रिय डोम और चांडाल के घर में जा रहे हैं। फिर अम्बेडकर जी ने उसमें और एक संदर्भ दिया है। 6ठी शती में अपने हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े संस्कृत साहित्यिक हो गए, उनका नाम है बाणभट्ट। बाणभट्ट की एक नवल कथा है, मैंने उपन्यास है, उसका नाम है कादम्बरी। कादम्बरी का जो नायक है वो क्षत्रिय है। उसका ब्राह्मण अमात्य अपने क्षत्रिय राजा को कहता है कि राजन, अपने राज्य में एक चांडाल राजा है। राजा शब्द अम्बेडकर जी उल्लेख करते हैं, वो चांडाल राजा शब्द प्रयोग कर रहा है। उसकी जो राजकन्या है 16 साल की है, अत्यंत सुंदर है, और उसके पास एक वैशंपायन नाम का तोता है, उसको वेद मुखोद्गत है, संस्कृत में ही वो बोलता है। तो राजन, ये दोनों रत्न हैं वो आपके पास चाहिए। तो राजा कहता है तो जाओ चांडाल राजा के घर पे जाकर उसको निमंत्रण दे दो। तो ब्राह्मण अमात्य चांडाल राजा के घर पे जाकर निमंत्रण देता है। अम्बेडकर जी ने उस पुस्तक में 2 पन्ने भर सारा वर्णन किया है उसके संदर्भ में।
तो वो चांडाल राजा के घर का अत्यंत बीभत्स वर्णन है, उसमें अपने को जाना नहीं। दूसरे दिन वो चांडाल राजकन्या अपने तोते सहित राज दरबार में आती है, राजा उनका स्वीकार करता है। अंबेडकर जी ने पुस्तक में लिखा है, अगर चांडाल अगर अच्युत होते तो ब्राह्मण अमात्य चांडाल के घर में कैसे जाता, और चांडाल अगर अच्युत होते तो चांडाल कन्या लड़की ये राज दरबार में कैसी आ सकती। इसका अर्थ ही ऐसा है, अंबेडकर जी ने कहा कि 6वीं शती तक हिंदुस्तान में अस्पृश्यता नहीं थी। अंबेडकर जी ने चौथी बात लिखी है, अंग्रेजों ने उस समय एक नासिका निर्देशांक का एक सर्वे किया था, नोजल इंडेक्स, नाक का नाप लेकर। वो जो सारा सर्वे किया सारे भारत का, उसकी रिपोर्ट प्रसिद्ध हो गई, उसका रेफरेंस दिया अंबेडकर जी ने अपने पुस्तक में। उन्होंने कहा वो सारा पढ़ने के बाद ध्यान में आता है कि भारत के तथाकथित सवर्ण हो, पिछड़े हो, अनुसूचित जाति को हो या जनजाति को हो या घुमंतु जाति के हो, हम सभी के नासिका निर्देशांक में, नोजल इंडेक्स में मामूली फर्क है। इसका अर्थ ही ऐसा, वी आर ऑल बिलोंगिंग टू द वन रेस, हम सभी के सभी एक ही वंश के हैं। ये अंबेडकर जी ने लिखा है। मैं उसमें और एक बात बताता हूँ, फिर अंबेडकर जी दूसरा वाक्य बताता हूँ। अंबेडकर जी दूसरी बात कही, अंबेडकर जी का लाहौर में एक भाषण होने वाला था, एनालिसिस ऑफ द कास्ट, जाति निर्मूलन, जो हुआ नहीं, लेकिन उसके लिए जो पेपर बनाया था उसकी पुस्तक प्रसिद्ध हो गई। उसमें अंबेडकर जी लिखते हैं, उस पुस्तक में है, अंबेडकर जी मूलतः महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा हम महाराष्ट्र के हिंदू महार, अंबेडकर जी का वो समाज था, अभी वो नवबौद्ध हो गए, और महाराष्ट्र के क्षत्रिय मराठा माने पवार वगैरह सारे, हमारा सभी का गोत्र एक है। पंजाब के सारे अनुसूचित जाति के मजहबी सिख माने वाल्मीकि सिख, और पंजाब के सारे सवर्ण जट सिख, इनका सभी का गोत्र एक है। फिर अंबेडकर जी दूसरा वाक्य लिखते हैं, अगर हमारा सभी का गोत्र एक है, इसका अर्थ ही ऐसा कि 3000 साल पहले, 4000 साल पहले हमारा सभी का पिता एक था। इसका ही अर्थ गोत्र होता है ना। तो ऐसा क्या हो गया कि एक वारिस सवर्ण क्या हो गया, दूसरा वारिस अनुसूचित जाति में आ गया। इस पर शोध करना चाहिए। अंबेडकर जी को अगर ज़्यादा जीवन मिलता तो कदाचित उस पर प्रकाश डालते। ये सारे संदर्भ देकर अंबेडकर जी कहते हैं हम सभी एक ही वंश के हैं। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बात बाद में अंबेडकर जी ने लिखी है। अंबेडकर जी ने कहा हम सब एक ही वंश के हैं, और आगे का उनका वाक्य है, हम सब, जो अंग्रेज बता रहा है कि आर्य बाहर से आए और आज जो यहाँ के देश के अनुसूचित जाति के और जनजाति के लोग हैं वो अनार्य हैं, और जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वगैरह वगैरह जो सवर्ण हैं वो आर्य हैं। अंबेडकर जी का वाक्य कान खुलकर सुनो। अंबेडकर जी कहते हैं ये 100% झूठ है। उन्होंने कहा आर्य बाहर से आए, ये जो अंग्रेजों ने हमारे माथे पर जो हैमरिंग कर रहे हैं, इट इज़ 100% या 100% झूठ है। हिंदुओं में आपस में भेद निर्माण होने चाहिए, इसलिए अंग्रेजों ने ये झूठ का पुलिंदा हमारे माथे पर मारा है। स्वामी विवेकानंद जी के बाद डंके की चोट पर सैकड़ों बार ये उच्च स्वर से कहने वाले महान व्यक्तित्व माने पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने कहा आर्य बाहर से 100% झूठ है। उनका वाक्य उस पुस्तक में, अगर ब्राह्मण और क्षत्रिय अगर आर्य है तो इस देश का शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब भी आर्य है। अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को अगर आप द्रविड़ अनार्य कहेंगे तो इस देश का ब्राह्मण और क्षत्रिय भी द्रविड़ और अनार्य है। अंबेडकर जी का नाम लेकर भाषण करने वाले लोग ये अंबेडकर जी वाक्य कभी नहीं बताते। इसलिए नहीं बताते, नहीं तो उनकी दुकान नहीं चलेगी, इसलिए वो नहीं बताते हैं। अंबेडकर जी ने और एक रेफरेंस दिया है। 1935 में अंग्रेजों ने कास्ट नोटिफिकेशन जारी किया और 429 जातियां, ये अछूत जातियां माने शेड्यूल, उस समय शेड्यूल कास्ट शब्द प्रयोग नहीं था, उनकी उन्होंने लिस्ट प्रसिद्ध की, यादी प्रसिद्ध की। अंबेडकर जी ने वो पढ़ी। अंबेडकर जी को संस्कृत अच्छा आता था, लेकिन तो भी उसको संस्कृत विद्वान उनकी उन्होंने मदद की स्मृतियों के लिए। उस पुस्तक में अंबेडकर जी ने लिखा है, मैंने स्मृतियों का अध्ययन किया तो फिर मुझे ध्यान में आ गया कि अंग्रेजों ने ये जो 429 जातियों की यादी दी है,
उसमें 95% जातियों के नाम भारत के किसी भी स्मृति में नहीं मिलते हैं। इसका अर्थ वो जातियां उस काल में नहीं थी, बाद में निर्माण हो गई है। ये जो 6 बातें अंबेडकर जी ने, और बहुत है, अपने पास समय नहीं है, ये जो बातें अंबेडकर जी ने लिखी हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका सारा अध्ययन विश्व हिंदू परिषद के उस समय के जो कार्याध्यक्ष थे, बाद में अध्यक्ष बन गए और राम मंजूर मियां आंदोलन के सेनापति थे, श्रद्धेय स्वर्गीय माननीय अशोक जी सिंघल, उन्होंने सभी चीज़ों का अध्ययन किया। और फिर अशोक जी, उनका संतों के साथ बहुत व्यापक संपर्क था। सारे शंकराचार्य, आचार्य महामंडलेश्वर, अन्य संप्रदायों के प्रमुख अशोक जी मिलते थे। अशोक जी मिलने के लिए जाते थे तो सभी को 1-2 प्रश्न पूछते थे कि महाराज जी बताइए, अपने देश के कौन से ग्रंथ में लिखा है कि अमुक अमुक जातियां ये अछूत है? कोई भी संत उत्तर नहीं दे पाए। उन्होंने कहा ऐसा कहीं भी नहीं। फिर ये प्रथा कब से शुरू हो गई, इसके संदर्भ में कोई जानकारी है क्या? सभी संतों ने कहा हमारे पास कोई जानकारी नहीं। अशोक जी कुछ विद्वानों को भी मिले, कुछ हिस्ट्री के प्रोफेसर्स को मिले, सबके साथ वो इस पद्धति की चर्चा करते थे कि जिनको सामाजिक के संदर्भ में जानकारी है। उस समय प्रयाग के यूनिवर्सिटी के जो इतिहास विभाग के एचओडी थे डॉक्टर के.एस. लाल, उनकी भेंट हो गई। के.एस. लाल ये मध्ययुगीन इतिहास के काफ़ी बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं, विशेषता इस्लाम के। उनकी 25-30 हिस्ट्री की पुस्तकें हैं। उन्होंने अपनी एक पुस्तक माननीय अशोक जी को दी। उस पुस्तक का नाम है द ग्रोथ ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट इन मिडिवल इंडिया। मध्ययुगीन भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति की बढ़ोतरी कैसे हुई। अशोक जी ने वो पुस्तक पढ़ी और उसके बाद डॉक्टर के.एस. लाल के साथ उनका 2 बार लंबा सिटिंग में वार्तालाप हो गया और भी कुछ लोगों के साथ उन्होंने चर्चा की। और 17 अप्रैल 1994 सातन पासी के जयंती की निमित्त प्रयाग में एक कार्यक्रम था विश्व हिंदू परिषद के द्वारा। उस समय माननीय अशोक जी का भाषण हुआ और उस भाषण में माननीय अशोक जी ने कहा कि हिंदुस्तान में जो छुआछूत की जो बढ़ोतरी हो गई वो इस्लाम के आक्रमण के बाद हुई है, पहले नहीं थी। डॉक्टर के.एस. लाल की जो पुस्तक है उस पुस्तक में उसके 50 से ज़्यादा उदाहरण उन्होंने दिए हैं। के.एस. लाल जी ने पहले सबसे बताया। आप कहेंगे क्या बात करते हो, इसका कोई आपके पास प्रूफ है या ऐसे हवा में उड़ता जाए बात कर रहे हैं? मैं आपको 2 संदर्भ पहले देना चाहता हूँ। या माताएं हैं तो पहले महिलाओं का ही देता हूँ। आज यहाँ इतनी महिलाएं अपने कार्यक्रम में आई है, बहुत आनंद की बात है। अगर यही कार्यक्रम 100 साल पहले होता तो कोई महिला आती क्या? आप स्वयं कल्पना करो, नहीं आती। क्यों नहीं आती? महिला घर के बाहर जाती ही नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ भारत में? पहले तो ऐसा नहीं था। आप सब जानते हैं कि इस्लाम का आक्रमण दुनिया में अनेक देशों में हुआ और मुसलमान जिस देश में गए वहां सबसे ज्यादा अत्याचार उन्होंने माता बहनों पर किए, लाखों करोड़ों की संख्या में। जब भारत में वो आए और जीतने लगे तो हमारे लाखों महिलाओं पर अत्याचार हो गए। तो उस समय के हमारी सारी समाज सृष्टि थे, उनके सामने प्रश्न निर्माण हो गया कि हमारी बहू बेटियों के चारित्र की रक्षा कैसे करना। और उन सभी ने मिलकर निर्णय लिया होगा कि हमारी महिलाएं बाहर न जाएगी। पहले हमारी सारी महिला पढ़ी लिखी होती थी। 27 महिला ऋषियों की ऋचाएं वेदों में हैं, इतनी पढ़ी लिखी महिला थी। आद्य शंकराचार्य और मंडन मिश्र की जो बहस हुई, उस बहस में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, या अंपायर कौन होगा, हु इज द रेफरी, वो भी इतना ही विद्वान चाहिए। तो मंडन मिश्र की पत्नी थी श्री भारती, वो रेफरी थी, माने महिला उतनी पढ़ी लिखी और विद्वान थी, यही उसका अर्थ है। लेकिन इस्लाम का आक्रमण होने के बाद भाई पढ़ाई करना है तो घर के बाहर जाना पड़ेगा, घर के बाहर नहीं जा सकती, उनकी पढ़ाई बंद हो गई। कुछ लोग अपने घर में अपने बेटियों को पढ़ाते थे, वो बात अलग, लेकिन 99% महिलाओं की पढ़ाई बंद हो गई। फिर महिला ऐसी बाहर जाएगी और उसका चेहरा किसी ने देखा तो घूंघट प्रथा मुसलमान महिलाओं में थी, हिंदू में नहीं थी। हमने रामायण महाभारत टीवी में देखा। अभी भगवान राम, अब यहाँ राम दरबार का चित्र है, तो भगवान राम और सीता मंच पर सिंहासन पर बैठे हैं। सीता माता पर्दा ओढ़कर नहीं बैठी है,
अपने पद्धति नहीं थी, गुप्त काल में भी नहीं थी, हर्षवर्धन के समय भी नहीं थी, उसके बाद भी नहीं थी। भारत में पर्दा प्रथा आई इस्लाम के आक्रमण के बाद। केवल अपना पिता, अपना पति और अपना बेटा, यही केवल महिला का चेहरा देख सकते हैं, बाकी दूसरा कोई पुरुष महिला का चेहरा नहीं देख सकता। ये कुप्रथा हमारे आई। हमारे पहले बाल विवाह नहीं थे, माँ सीता का बाल विवाह नहीं हुआ, द्रौपदी का बाल विवाह नहीं हुआ, रुक्मिणी माता का बाल विवाह नहीं हुआ। उस समय वो सब बड़ी उम्र की 14 साल की, 16 साल की, जो कुछ है हो गई थी। हिंदुस्तान में 12वीं शती के पहले बाल विवाह का उल्लेख नहीं मिलता है। भारत में बाल विवाह की कुप्रथा 12वीं शती के बाद शुरू हो गई, जब हमारा हरने का सिलसिला शुरू हो गया। तब शादी के बाद महिला पर बंधन आते हैं, वो थोड़ी, और दूसरा मैके का घर और ससुराल का घर, दो घर उसका रक्षा करते हैं। मैं आपको और एक बात बताता हूँ, पंजाब में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार में अगर आप जाएंगे तो वहाँ शादियाँ रात को होती है। गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो शादियाँ दिन में होती है या सूर्यास्त के समय होती है। ऐसा क्यों? मैंने उत्तर भारत में अनेक लोगों को प्रश्न पूछा तो मुझे जो उत्तर मिला कि जहाँ 700-800 साल तक मुसलमानों का राज्य रहा वहाँ शादियाँ रात को होती है, और जहाँ 300-400 साल मुसलमानों का राज्य रहा और बाद में जो स्वतंत्र हो गए वहाँ शादियाँ दिन में होती है। क्योंकि शादी ब्याह में महिला की संख्या हमेशा ज़्यादा रहती है, तो अगर शादी दिन में हो गई और मुसलमानों ने अगर आक्रमण किया तो महिलाओं पर अत्याचार हो जाएंगे या उनको भगा कर लेके जाएंगे। रात को कुछ नहीं होता। अभी लाइट आ गई है, पहले कहाँ थी? पहले रात को युद्ध नहीं होते थे, तो इसलिए रात को महिला सुरक्षा रह सकती है, इसलिए रात को शादी की पद्धति आई। मैंने चारों बातें इसलिए बताई, ये महिलाओं के संदर्भ में ये चारों को प्रथाएं आज नहीं है, लेकिन जो आई इस्लाम के आक्रमण के बाद आई, पहले नहीं थी। अभी हम सब देखते हैं कि दुनिया में लगभग 200 देश हैं, उनमें से 100 से ज़्यादा देशों में हिंदू संस्कृति के चिन्ह मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? तो 1000 साल पहले, 1500 साल पहले, 3000 साल पहले हमारे पूर्वज कुर्नुवंत विश्व मरियम का जप करते हुए पानी के जहाज में बैठकर दुनिया के अनेक देशों में गए। हिंदू संस्कृति का विश्व संचार हो गया, सारे दुनिया में है। वो पानी के जहाज में बैठे गए। 14वीं शती में ऐसे क्या हो गया कि पानी माने सागर पार नहीं करना, ये बंधन आ गया। 13वीं शती तक हम सारे दुनिया में घूमते थे। 14वीं शती में क्या हुआ? 14वीं शती में आधा भारत मुसलमानों के कब्जे में गया और सागर पार नहीं करना, ये बंधन आ गया। उसके पहले नहीं था। ये बात हम सभी लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। ये सारी चीजें ना, ये डिफेंसिव सिस्टम कहते हैं ना। अभी क्रिकेट चल रहा है तो क्रिकेट में 2 पद्धति के बैट्समैन होते हैं, एक फ्रंट फुट पर खेलता है, एक बैक फुट पर खेलता है। तो ये जो है ना, वो बैक फुट पर खेलने जैसा समाज है। कुछ लोग ऐसा है कि जो डिफेंसिव सिस्टम अपनाते हैं, स्वयं होकर आक्रमण नहीं करेंगे, उसने आक्रमण किया तो हम डिफेंस करेंगे, इस पद्धति की बात होती है। उसमें कभी कभी गड़बड़ होती है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ऑफेंसिव था, आक्रामक था, और फ्रांस ने डिफेंसिव सिस्टम अपनाई, फ्रांस हार गया। चलो, मुझे वो कहना नहीं, हमारे पूर्वजों ने उस पद्धति का विचार किया होगा, ऐसा आज लगता है। देखो, जैसे कछुआ होता है, कछुआ पर अगर किसी ने आक्रमण किया तो कछुआ अपना मुंह, गर्दन, अपने पैर सिकुड़ लेता है और ऊपर रहती है उसके ढाल जैसी पीठ, चाहे कितना भी आक्रमण करो। ऐसा हमारे उस समय के पूर्वजों ने किया होगा। उन्होंने अपने ऊपर बंधन डाले और बंधन डालने के बाद संकुचित होता है। पानी का प्रवाह जब बहता है ना तो वो शुद्ध रहता है, और पानी का प्रवाह जब रोका जाता है ना तो उसमें अशुद्धता आती है। तो बंधन के कारण हमारे यहाँ कुछ पद्धति की समस्याएं निर्माण हो गई, संकुचितता आई, जन्मजात जाति व्यवस्था आने अनेक चीजें आ गई। उसके कारण ये सारी चीजें अपने पास आई होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो भी आप मुझे प्रश्न पूछेंगे कि ठीक है, आपने ये बताया, लेकिन किसी समाज का उदाहरण बता दो, ये जो आप बता रहे हो। अपने पास समय कम है, मैंने ऑलरेडी अभी जो मैंने 5 मिनट ज़्यादा हो गए, मैंने जो तय किया था उसमें। अभी देखिए, मैं आपको 2 समाज का केवल उदाहरण देता हूँ। एक है, पहला समाज उदाहरण तो वाल्मीकि समाज।
अपने हिंदुस्तान में अभी 100-200 साल में शौचालय की पद्धति शुरू हो गई, अभी तो गांव-गांव में शौचालय बन गए। लेकिन 100 साल पहले क्या था, सारे लोग प्रातर्विद के लिए गांव के बाहर जाते थे, राजा महाराजा भी जाते थे, उनके लिए व्यवस्था रहती थी। तो सारे लोग बाहर ही जाते थे, तो सफाई का कोई विषय ही नहीं आता था। अपने घर की सफाई और अपने घर के सामने प्रांगण की सफाई वो तो घर के लोग ही करते थे, महिला पुरुष सब करते थे, किसी बाहर मजदूर की लाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन मुस्लिम महिलाएं घूंघट में रहती थी, इसलिए वो बाहर नहीं जाती थी। पहले तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, लेकिन जब हमारा हरने का सिलसिला शुरू हो गया, पृथ्वीराज चौहान हरने के बाद, तो लाखों की संख्या में हिंदू मारे गए, लाखों की संख्या में हिंदू गुलाम बने और लाखों की संख्या में हिंदू जबरदस्ती से उनको मुसलमान बनाया गया। तो महिला भी बनी, तो जो महिलाओं को मुसलमान बनाया गया वो भी घूंघट में आ गई, उनका बाहर आना जाना बंद हो गया। इक्का दुक्का मुसलमान भी उस समय बाहर जाना डरता था कि सब दिन में मैं हिंदुओं पर अत्याचार करता हूं और इस स्थिति में अगर कोई हिंदू मुझे मारने के लिए आए तो क्या होगा, तो वो भी डरता था। तो घर में ही शौचालयों की व्यवस्था करनी पड़ी, तो गंदगी बढ़ने लगी, तो कौन साफ करेगा? तो जो हिंदू गुलाम बन गए थे उनको मार मार कर लाया गया और उनके सामने शर्त रखी गई, या तो इस्लाम का स्वीकार करो, अगर मुसलमान नहीं बनना है तो हमारे घर की सफाई करो। और भाइयों बहनों, एक गर्व की बात है, हमारे हजारों लाखों पूर्वजों ने इस्लाम का स्वीकार करने के लिए इनकार किया, महिला उठाने के काम का स्वीकार किया। उनके स्वाभिमान का भंग हो गया, लेकिन उन्होंने कहा मैं कोई भी काम करूंगा लेकिन एट एनी कॉस्ट मैं हिंदू धर्म नहीं छोड़ूंगा। पहले उनको मेहतर कहते थे, आज हम सब उनको वाल्मीकि सफाई कर्मी कहते हैं। हमारे सफाई कर्मियों के गोत्र क्या है? चौहान है, राठौड़ है, परमार है, गहलोत है, सोलंकी है, ये किसके गोत्र है? ये सारे गोत्र क्षत्रियों के हैं। हिंदी में एक उपन्यास है, उपन्यास में नवल कथा, नाचो बहुत गोपाल, अमृतलाल जी नागर जी का है, उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, वो वाल्मीकि समाज पर है। उन्होंने उसमें 27 गोत्रों की जानकारी दी है, उसमें 25 गोत्र क्षत्रियों के, 2 गोत्र ब्राह्मणों के हैं। वाल्मीकि समाज के जितने गोत्र है उसमें 20% गोत्र ब्राह्मणों के हैं, 80% गोत्र क्षत्रियों के हैं। आप देखिए 1000 साल पहले हिंदुस्तान के किसी भी पुस्तक में सफाई कर्मी, जो पहले जो शब्द प्रयोग मेहतर अभी भंगी करना उचित नहीं है, मैंने कानूनी दृष्टि से अपराध है इसलिए मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं किया, उस पद्धति का शब्द किसी भी पुस्तक में नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? 200 साल पहले दुनिया के किसी भी भाषा में मोटरसाइकिल नाम का शब्द नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? 200 साल पहले मोटरसाइकिल थी ही नहीं। जब वस्तु का अस्तित्व ही नहीं होता है तब भाषा में शब्द नहीं आता। 1000 साल पहले ये शब्द इसलिए नहीं थे क्योंकि वो जाति का अस्तित्व ही नहीं था, वो जाति बाद में निर्माण हो गई है। देखो हमारी तो बात छोड़ो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो एक कांग्रेसी गांधीवादी नेता थे डॉक्टर KR मलकानी, उन्होंने उनको बताया था सफाई कर्मियों का अध्ययन करने के लिए एक आयोग स्थापित किया गया था। 1960 में उसकी रिपोर्ट प्रसिद्ध हो गई। इस रिपोर्ट के प्रास्ताविक में डॉक्टर मलकानी जी ने लिखा है, आज हम जिनको सफाई कर्मी कहते हैं वो सारे के सारे, उनके शब्द बता रहा हूं, विदेशी आक्रांतों के साथ लड़ते समय पराभूत हुए योद्धाओं के वंशज है। मलकानी जी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और RSS के कार्यकर्ता नहीं थे, वो कांग्रेसी सर्वोदयी थे, लेकिन उन्होंने ये बात लिखी है। वाल्मीकि समाज के संदर्भ में ये बात मैंने बताई, वाल्मीकि समाज के संदर्भ में बहुत कुछ खोज हो गई है। माननीय अशोक जी सिंघल नागपुर में आए थे तो वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष उनको मिलने के लिए आए 2004 में, उनका नाम चौहान था। वो अपने साथ सारी 35 पीढ़ियों की जानकारी, उनके चारण भी आए थे उनके साथ, और उन्होंने कहा कि 35 पीढ़ी पहले बूंदी के फलाने जगह के हम कैसे जागीरदार थे, वो जो चारण ने सब बता दिया। एक एक्सपर्ट थे अशोक जी के साथ उनको मिलने का, उन्होंने कहा ये बात बोल रहे हैं ना, वो सही बोल रहे हैं। वही बात है रविदास जी जैसा, जहाँ गुजरात में हम उनको रोहित समाज कहते हैं। अपने भारत में पहले हमारे ऋषि मुनि, मुझे एक ने प्रश्न पूछा, ऋषि मुनि तो व्याघ्राजिन मुगराजिन बनाते थे, आप कैसे कहते वहाँ नहीं थे? तो हमने कहा कि व्याघ्राजिन मुगराजिन बनाते थे तो कोई हमारा चर्मकार समाज का बंधु वहाँ आश्रम में जाता था क्या
बनाने के लिए। नेचुरल डेथ से जो कोई हिरण या शेर मरता था तो मरे हुए उसका चमड़ा निकालना, वो सुखाना, ये काम वो ऋषि मुनि, उनके शिष्य, उनकी गुरु पत्नी वगैरह जो हैं वही सब करते थे। हमने किसी ऋषि मुनि को चर्मकार नहीं कहा। एक बात ध्यान में रखना, अरबस्तान में सारा रेगिस्तान है, वहाँ न चावल होता है, न गेहूँ होता है, न दाल होती है। उनका खाना क्या है? भेड़ बकरी का मांस खाना और ऊँटनी का दूध पीना, वो उनका खाने पीने का विषय है। उनको हर रोज चाहिए खाने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। उनके पास कुछ संपन्न अरब भारत से इंपोर्ट करते होंगे। उनके यहाँ न रेशम होता था, न सूत माने कॉटन होता था। चमड़े के अधोवस्त्र पहनते थे। कोई संपन्न अरब भारत से इंपोर्ट करते होंगे। तो उनकी जो सारी चमड़े की सभ्यता है, जब भारत पर आक्रांता इस बांधकर आए और जीतने लगे, तो अपनी जो चमड़े की सभ्यता है वो उन्होंने हमारे ऊपर ला दी। देखो, भारत में भी नॉनवेज खाने वाले आज तो बहुत है, पहले भी थे, लेकिन आज हर रोज नॉनवेज खाते हैं। पहले कोई भी क्षत्रिय भी हर रोज नॉनवेज नहीं खाता था। हाँ, मच्छीमारी करने वाला मछली खाता होगा या जंगल में रहने वाला कोई खाता होगा, लेकिन क्षत्रिय भी कभी शिकार करने के लिए जाता था, तब कोई हिरण मारा, कोई सुअर मारा और फिर उसका मटन बनाया और खाया, यही होता था। हर रोज खा रहे हैं, मुर्गी काट रहे हैं, ऐसा तो कभी नहीं होता था। परंतु उनको तो हर रोज चाहिए। इस्लाम के आक्रमण के बाद 12वीं शताब्दी के बाद अपने भारत में 1000 गुना पशुओं की हत्या शुरू हो गई। हत्या कौन करेगा? जीता हुआ मुसलमान नहीं, हारे हुए और गुलाम बने हिंदुओं को हिंदू धर्म में रहने के शर्त पर वो काम करना पड़ा, जिनको आज हम खटिक कहते हैं। अपने भारत में लिए चमड़े का उपयोग नहीं था, चमड़ा हमारे निषिद्ध था। आज भी हम दक्षिण में अगर जाते हैं, आप कन्याकुमारी के मंदिर में जाएं, काची कामकुटी में जाएं, वह चमड़े की पर्स और चमड़े का बेल्ट पहनकर अंदर जा नहीं सकते। हमारे चमड़ा निषिद्ध था, आज भी अनेक जगह है। अरबस्तान में मैं आपको और एक बात बताता हूं, 1000 साल पहले अपने देश में चमड़े के जूते की पद्धत नहीं थी, अरबस्तान में थी, क्योंकि चमड़ा यही उनका सब कुछ था। हमारे यहाँ नहीं थी। हमारे यहाँ कुछ 1-2% लोग लकड़ी के खड़ाऊ पहनते थे, बाकी लोग नहीं पहनते थे। आप कहेंगे क्या बात करते हो? क्या 10 साल पहले हम किसी को मालूम था कि कबड्डी भी जूते पहनकर खेली जाती है? मुझे तो मालूम नहीं था। कबड्डी प्री लीग शुरू होने के बाद हमें पता चला। 50 साल पहले हमें मालूम था कि कुश्ती भी जूते पहनकर खेली जाती है, हमें तो मालूम नहीं था। कुश्ती माने वो तो मिट्टी में खेली जाती है, ये ऐसी कैसी कुश्ती? देखो, मैं तो मुंबई का रहने वाला हूँ, लेकिन बारिश के समय कक्षा 7वीं तक, मुझे याद नहीं आ रहा है कि कक्षा 7वीं तक बारिश के दिनों में हम चप्पल पहनकर कभी स्कूल में गए। अभी मैं आंध्र प्रदेश में गया था, हमारे एक ज्येष्ठ कार्यकर्ता हमारे राघोलू जी, वो 80 साल के हैं, तो वो मेरे साथ घूम रहे थे, तो वो बिना चप्पल जूते। अरे मैंने कहा, राघोलू जी चप्पल? अरे गांव में है ना, गांव में कोई चप्पल जूता नहीं पहनता है, कभी आवश्यकता बाहर जाना है तो पहनते हैं, हम ऐसे ही पहनते हैं। तो हमारे वो पद्धति नहीं थी। शिवाजी के मौला बिना चप्पल जूता ही लड़ते थे, उनके पास कुछ इस पद्धति की बात नहीं थी। तो हमारे वो सिस्टम नहीं थी। चमड़े के जूते की पद्धत 12वीं शताब्दी के बाद अपने हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर शुरू हो गई है, पहले नहीं थी। तो मुसलमानों आने के बाद इतने बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में पशु कटने लगे, तो फिर उनका चमड़ा उतारना है, सुखाना है, उसकी वस्तुएं बनाना है, काम कौन करेगा? हारे हुए गुलाम बने हिंदुओं को मजबूरी में वो करना पड़ा। अभी वो चमड़े का तो उसको बदबू आती है, तो काम करने वाले लोगों ने कहा आप जरा बाहर जाओ, हमारे पड़ोस में मत रहो, तो उनको बड़ो दूर जाना पड़ा। वो गांव से अलग हो गए, धीरे धीरे अछूत बन गए, जिनको आप रोहित कहते हैं या रविदासी कहते हैं। मैंने केवल 2-3 जातियों का उल्लेख किया, लेकिन भाइयों बहनों, ये सभी के संदर्भ में इस पद्धति का विचार हो सकता है। हमारे लालू प्रसाद यादव कहते हैं हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं। अरे भगवान कृष्ण तो क्षत्रिय थे और ये तो पिछड़े हैं, तो क्षत्रिय यादव पिछड़े कैसे हो गए? कुछ तो हो गया होगा ना। बिहार में दुसात 14वीं शताब्दी तक दुसात राजाओं का उल्लेख है। आज दुसात माने पासवान, वो शेड्यूल कास्ट में है, ये कैसे हुआ होगा? सिंध जीतने वाला मिहिर भोज, गुर्जर प्रतिहार सम्राट जिसने सिंध जीता, आज गुर्जर जो है हमारे अति पिछड़े हैं। ये कैसे गुजर, ये कैसे हुआ होगा? ये सारी बातें हम सभी ने ध्यान में रखनी चाहिए।
विश्व हिंदू परिषद का कहना है जितनी अनुसूचित जाति, जनजाति, घुमंतु जातियां हैं, उनके सभी के गोत्र के संदर्भ में, उनके सभी विषयों के संदर्भ में खोज करनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए। अगर रिसर्च हो गई तो वाल्मीकि समाज के संदर्भ में रिसर्च बहुत हो गई है तो अनेक तथ्य मिल गए। वैसे सभी जाति संप्रदाय, जाति बिरादरी के संदर्भ में ये मिल जाएंगे और ये सारी बातें जब सारे समाज के सामने आएगी तो देखने का नजरिया ये बदल जाएगा। इसका प्रचार प्रसार हम करते हैं। सभी सवर्ण बंधुओं को मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ एक बात करने के लिए। आप देखिए, आज हम जिनको अनुसूचित जाति कहते हैं 16% है वो, ये 16% लोग अगर उस समय इस्लाम के अत्याचार के कारण इस्लाम का स्वीकार करते तो क्या होता। आज अपने भारत में 16% मुसलमान हैं जिनकी आबादी है 22 करोड़, और 16% अगर मुसलमान बनते तो हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी हो जाती 44 करोड़। अब जरा कल्पना कीजिए क्या होता। अभी 22 करोड़ ही तो क्या हम भुगत रहे हैं, अगर 44 करोड़ होते तो क्या होता। कल्पना करिए। ये तो जो छोड़ो, 1947 में जब अपने देश का विभाजन हो गया तब अपने हिंदुस्तान में 23% मुसलमान थे। अगर उस समय ये 16% ऐड करते हैं, अगर 39% मुसलमान होते तो क्या होता। आधा भारत पाकिस्तान बनता। भाइयों बहनों, आज अब हिंदू इस नाते से जीवित है, धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, पूजा करते हैं, उत्सव बड़े पैमाने पर मनाते हैं। हम जिनको अनुसूचित जाति इस नाते से उपेक्षा से और अपमान की भावना से देखते हैं, उनके त्याग और बलिदान के कारण अपने धर्म की रक्षा हुई है, हमने कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारा तो कहना है, अंग्रेजों के विरोध में स्वतंत्रता के लड़ने वाले को हम स्वतंत्रता सैनिक कहते हैं। धर्म की रक्षा करने के लिए जिन्होंने इतना त्याग किया वो सारे के सारे धर्म योद्धा है, और उनको धर्म योद्धा मानकर हम सभी ने उनको सम्मान देना चाहिए। ये विश्व हिंदू परिषद का आग्रह है सारे समाज को। इसका प्रचार प्रसार विश्व हिंदू परिषद करती है। फिर आप कहेंगे तो इसका अर्थ सारा जो गलतियां हैं वो मुसलमानों की हो गई। मैं कहता हूं केवल 50% या उससे भी ज़्यादा दोषी हम हैं। अरे मुसलमान राजाओं ने भले उन पर अत्याचार किए इसलिए उनको ये जीवन आया, हमने उनकी बात क्यों मानी। हमारे सारे संत महंत ने उस सारे अस्पृश्यता के विरोध में जागरण किया। माफ करना, हम सारे संतों के भजन गाते हैं सत्संग में, लेकिन संतों ने जो उपदेश किया उसका आचरण हमारे पूर्वजों ने नहीं किया। तो केवल इस्लामी सत्ताधीश उस समय के थे अत्याचारी बादशाह, उनको क्यों दोष देना। उन्होंने भले वो किया होगा, हमने उसका पालन क्यों किया। उनकी हर बात हम मानते थे क्या? अनेक बात हम उनकी बात नहीं मानते थे, ये बात हमने क्यों मानी। तो केवल मुसलमानों को दोष देकर नहीं चलेगा, हम भी उतने ही दोषी है। देखिए, पूर्वजों के पुण्य में जैसे हम हिस्सेदार हैं, पूर्वजों के पाप में भी हम हिस्सेदार हैं। मेरे पिताजी की 50 लाख की प्रॉपर्टी है, हम 2 भाई है, 25-25 लाख हमें मिलेंगे पिताजी के बाद। लेकिन मेरे पिताजी का अगर 20 लाख का कर्जा है, पिताजी जाने के बाद हम दोनों भाइयों को मिलकर उसका भुगतान करना है। तो हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारा व्यवहार उस पद्धति का होना चाहिए। उस नाते से हम सभी ने प्रयत्न करना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद उसके लिए प्रयत्न करती है। हमारा जो आह्वान है वो मैं केवल बताता हूं संक्षेप में। बड़ी जाति छोटी जाति ये शब्द प्रयोग हमने करना बंद करना चाहिए। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। आप तथाकथित कहो, तथाकथित सवर्ण, तथाकथित अनुसूचित जाति। आप ये बड़े जाति का और छोटी जाति का है, इसका कहना ही अर्थ है कि आप में कुछ भेद है मन में, हम नहीं कहेंगे। जाति के आधार पर भारत की सभी भाषाओं में वाक् प्रचार है, वर्ब्स है और कहावतें हैं। तो जाति के आधार पर जितनी कहावतें और वाक् प्रचार है उसका उपयोग हम नहीं करेंगे, हम तय कर सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी के वाल्मीकि समाज के नहीं है, सारे हिंदू समाज के हैं। अरे उन्होंने रामायण नहीं लिखी होगी तो भगवान राम की जानकारी हमें कैसे मिलती। वो एक समाज के नहीं है, सारे हिंदू समाज के हैं। संत रविदास सारे हिंदू समाज के हैं, वो एक समाज के नहीं है। संत रविदास जी को जब सिकंदर लोदी ने गिरफ्तार किया था
तो उस समय संत रविदास जी को उन्होंने कहा कि आपने कुछ मुसलमानों को हिंदू बनाया है, इसकी आपको मृत्युदंड है। तो संत रविदास वाणी में उनके कुछ भजन हैं, उसके एक भजन का एक वाक्य बताता, वो कहते हैं, चोटी शिका कभी नहीं त्यागू, वस्त्र समेत देह बले त्यागू। मैं देह त्याग कर सकता हूं लेकिन मेरे धर्म का त्याग नहीं करूंगा। वेद धर्म कभी नहीं त्यागू, जो गले चले कटार। आप मेरे गले पर कटार चला सकते हैं लेकिन मैं मेरा धर्म का नहीं छोड़ूंगा। ये बात उन्होंने कही। अपने संदर्भ में उनके एक वाक्य है उसी रविदास वाणी में, वो लिखते हैं, जाके सब ढोर ढोवत वाराणसी आस पासा, आचार्य सहित विप्र करी दंडवत तीन तनय रविदास दासानु दासा। मैंने आज हमारे रविदासी जात भाई मरे हुए पशुओं को ढो रहे हैं, लेकिन कुछ साल पहले काशी के विद्वान ब्राह्मण हमारे पूर्वजों को प्रणिपात माने नमस्कार करते थे। संत रविदास जी का गोत्र है पिप्पल, उनका वंश है चौवर, चौवर वंश क्षत्रियों का है। तो संत रविदास जी जो हैं वो क्या केवल रविदास जी समाज के हैं? वो सारे हिंदू समाज के हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सारे हिंदू समाज के हैं। तो इनकी जो जयंती के कार्यक्रम होते हैं उसमें सारे हिंदुओं ने सहभागी होना चाहिए। सारे हिंदू समाज ने कहा दीज आर आवर आइकॉन है, हम हमारे आदर्श है। उनकी जयंती के कार्यक्रम में हम सभी लोग जा सकते हैं। हमारे अड़ोस पड़ोस में जो हमारे ऐसे बंधु हैं, हम नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, अपने मित्र हैं, कॉलेज में, स्कूल में, तो उसमें जो हमारे ऐसे शेड्यूल कास्ट के हैं, क्या उनके घर में हमारा आना जाना हो सकता है? होना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद कहती हिंदू परिवार मित्र योजना, माने हमारा परिवार ये और किसी एक अनुसूचित जाति के परिवार को हमने मित्र बनाया। केवल अपना अकेला नहीं है, परिवार सहित हम भी वहाँ जाते हैं, परिवार सहित सब वो समाज भी हमारे पास आता है। ये इंटरेक्शन शुरू होना चाहिए, आना जाना, तो भी अनेक बदल हो सकता है। विश्व हिंदू परिषद सेवा का काम करती है, साधु संत के प्रवास उसमें आयोजित करती है। 2005 में संत रविदास चेतना यात्रा विश्व हिंदू परिषद ने निकाली 15 दिन की चित्तौड़ में, क्योंकि संत रविदास जी की शिष्या थी संत मीरा और इसलिए उनकी समाधि है वो चित्तौड़ में है। तो चित्तौड़ से काशी तक ऐसी 15 दिन की संत रविदास चेतना यात्रा निकाली थी। ऐसे अनेक कार्यक्रम, तो ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं उस सारे कार्यक्रमों में हमारी भी सहभागिता जो होनी चाहिए। हम उस नाते से प्रयत्न करेंगे। हम जहाँ रहते हैं वह शेड्यूल कास्ट के बच्चों के छात्रावास है, क्या हम वहाँ जा सकते हैं? किसी त्यौहार के दिन उस बच्चों को हमारे घर में हम भोजन के लिए बुला सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। हमारा जो गांव है उस गांव के कोई भी हो, सभी मंदिरों में सभी को प्रवेश है, सभी कुओं में सभी को पानी मिलता है, और किसी भी स्मशान भूमि में कोई किसी का भी मृत्यु हो गया तो सभी का अंतिम संस्कार उसके हो सकता है। ऐसी मेरे गांव में स्थितियां आनी चाहिए। क्या मैं उसके लिए प्रयत्न कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें भी अगर हम सब लोग अगर मिलकर करेंगे तो सामाजिक समरसता का जो हमारा सभी का मिलकर जो लक्ष्य है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। आप सब लोग इसका थोड़ा सा अंतर्मुख होकर विचार करेंगे और बाद में क्रियान्वयन भी करेंगे, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ और मेरे वाणी को भी विराम देता हूँ। जय श्री राम। પણ આપણને ખૂબ જ માર્ગદર્શન આપ્યું, વધાવશું. બોલો જય જય શ્રી રામ. કાર્યક્રમને આગળ ધપાવતા આજના જેમના અધ્યક્ષ સ્થાને આ બેઠક થઈ રહી છે તેવા રાજાભાઈ કાથડને હું વિનંતી કરીશ કે પ્રાસંગિક પ્રવચન આપશે. માન્ય શ્રી રાજાભાઈ. જય શ્રી રામ. વક્તવ્ય પછી કંઈ બોલવાનું આવતું નથી, પરંતુ આજે મને અધ્યક્ષ તરીકે અહીંયા સ્થાન આપ્યું છે ત્યારે 2-3 બાબતો કહીને મારી વાત પૂરી કરીશ. એક તો આ સામાજિક સમરસતા સંગમ અને આજે આત્મીય યુનિવર્સિટીમાં યોજાઈ રહ્યો છે. સમરસતા અને આત્મીય આ બંને શબ્દનો લગાવ છે. બીજું આત્મીય યુનિવર્સિટીનો આપણે લોગો જોઈએ છીએ, સહૃદમ સર્વભૂતાનામ. આ સમરસતા તરફની જ વાત છે. તો સમરસતા એ આપણા વ્યવહારથી આવે છે. આપણે નરસિંહ મહેતા બનવું પડશે. એવારે અમે એવારે, વળી તમે કહો છો તેવારે,
ભક્તિ કરતા જો ભ્રષ્ટ કહેશો તો કરશું દામોદરની સેવા રે. બીજાના ઘર સુધી આપણે જવું પડશે. એવું કહેવાય છે કે આપણા હિન્દુ સમાજ માટેની જો આ સમરસતા માનનીય વિનાયકરાવજીએ ઘણી બધી વાત કીધી છે, અને જો આ સમરસતા નહીં આવે, ઘણો બધો પરિવર્તન આવ્યું છે પણ હજુ ઘણું કરવાનું બાકી છે. ત્યારે આપણે જે જાગૃત છે એણે સમરસતા માટેના પ્રયત્ન કરવાના છે. આપણે ચલો જલાએ દીપ વહાં જહાં અભી ભી અંધેરા હૈ, એ ઝૂંપડી સુધી આપણે જવું પડશે. વ્યવહારથી સમરસતા આવશે. અને પ્રાચીન કાળમાં છૂઆછૂત વગેરે હતું જ નહીં, પણ આ આક્રંતાઓને કારણે બધું આવ્યું છે. પણ એ પછીની જે આપણી જવાબદારી છે એ આપણી જવાબદારી નિભાવવામાં ક્યાંક નિષ્ફળ ગયા છે. ઘણા વર્ષો નીકળી ગયા છે. ત્યારે એવું કહેવાય છે કે આ છેલ્લી ટ્રેન છે હિન્દુ સમાજ માટેની. આ છેલ્લી ટ્રેન આપણે ચૂકી ન જઈએ. રાજનીતિ આપણે જોઈ રહ્યા છે બધી. હિન્દુ સમાજને સંગઠિત રાખવા માટે, આપણા રાષ્ટ્રને મજબૂત કરવા માટે સર્વ સમાજને સાથે લઈને આપણે નીકળવું પડશે. અને સાથે લેવા માટે આપણે આપણો વ્યવહારથી, આપણે પોતાના ખુદથી, આપણા કુટુંબના વ્યવહારથી, આપણા વ્યવહારથી સમરસતા આવશે. વ્યવહારથી જ વિશ્વાસ બેસશે. બસ આટલી વાત કહીને હું વિરમું છું. જય જય શ્રી રામ. મહર્ષિ કાથડ સાહેબે આપણને ખૂબ જ સરસ માર્ગદર્શન આપ્યું. કાર્યક્રમને અંત તરફ લઈ જતા સમાજના આગેવાનો દ્વારા વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના કેન્દ્રીય સંગઠન મંત્રી, સહસંગઠન મંત્રીને અભિવાદન કરવું હોય તો સૌપ્રથમ હું નરેન્દ્ર એચ સોરઠિયાને વિનંતી કરીશ કે મંચસ્થ આવી અને શ્રી વિનાયકરાવજીનું સન્માન કરશે. છે કે સિક્કા સંગ્રહનું એમનું ખૂબ જ મોટું કલેક્શન છે અને ખાસ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના આમંત્રણ માન આપી આજના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત છે. તો હું વિનંતી કરીશ નરેન્દ્રભાઈને કે માનીય શ્રી વિનાયકરાવજીનું સન્માન કરશે. જી. સાથે રાષ્ટ્રીય સેવક સંઘના સહવ્યવસ્થા પ્રમુખ માનીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ દવે પણ ઉપસ્થિત છે. તે પણ સાથે આ સન્માનમાં જોડાશે. બોલો જય જય શ્રી રામ. સાથે સાથે બોલો જય જય શ્રી રામ. કાર્યક્રમને અંત તરફ લઈ જતા પરિષદ સમરસતા સંગમ કાર્યક્રમમાં સર્વે સમાજ આગેવાનો, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના કાર્યકર્તાઓ અને અધિકારીઓ સમય કાઢી અને આ જે સમરસતાની જ્યોત જગાવવા માટે આપણે એકત્રિત થયા છે તે બદલ સૌનો ધન્યવાદ, આભાર. જય શ્રી રામ. અંતમાં મહાદેવના નાદ સાથે આપણે કાર્યક્રમની પૂર્ણાહુતિ કરશું. પણ એ પહેલાં એક સૂચના સાથે સર્વે પધારેલ મહાનુભાવોની ભોજન વ્યવસ્થા નીચે ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ઉપર રસોડું છે ત્યાં બધા રાખેલ છે. અહીંથી સીડી ઉતરશો, સીડી ઉતરીને સીધા બહાર નીકળશો ત્યાં બધા માટે ભોજન વ્યવસ્થા રાખી છે. અહીંથી આ બહાર નીકળો એટલે ડાબી બાજુ જે સીડી છે ને ત્યાં નજીક પડશે. આપણે આવ્યા છે આ લિફ્ટ પાસેથી, ત્યાંથી નહીં પણ આથી દરવાજામાં, આ દરવાજામાંથી બહાર નીકળી ડાબા હાથ ઉપર સીડી છે ત્યાંથી ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ઉપર જવાનું છે. ત્યાં આખું રસોડાની વ્યવસ્થા છે. તો કાર્યક્રમને અંત તરફ લઈ જતા મહાદેવના નાદ સાથે આજની આપણી આ બેઠક પૂર્ણ કરશું. બોલો નમઃ પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ હર. જય જય શ્રી રામ.